Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. So today I want to give a message on मानवता. मानवता हम सभी वैसे तो मानव हैं, इंसान हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें इंसानियत मिसिंग नज़र आती है. ठीक है, अगर एक मैसेज इंसानियत पर, इंसान ही आता है काम इंसान की, इंसान ही आता है काम इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता. भगवान ऊपर से डायरेक्ट नहीं आता हमारी हेल्प करने. कौन हमारी हेल्प करता है? इंसान. तो इंसान ही आता है काम इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता. यह जान ले सच्चाई ए दोस्त, यह सच्चाई जान ले ए दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता. तो अगर हम सभी समाज में एक ही रिश्ता रखें, केवल इंसान का दूसरे इंसान से, इंसानियत का, तब जो ये समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद से ही कम हो जाएंगी. ठीक है, इंसान सिर्फ एक इंसान से प्यार करे, उसकी इज्जत करे, राइट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी खुद से ही सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो बी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट. सो टुडे yesterday I explained to you the aggregate demand and aggregate supply, this approach, right, to determine the level of income. Today I decided that determination of income and employment by SNI approach, saving and investment approach. The level of income, we can decide whether it is rising, falling or not, changing at equilibrium through saving and investment also. So today I decided this topic where the equilibrium is struck when saving is equal to investment. In this figure it is happening at E point, right? Equilibrium level of income when the neither income will increase nor income will fall. यानी कि इनकम ना तो बढ़ेगी और ना ही कम होगी. कब ऐसा होगा? जब सेविंग, planned saving by the household will become to the investment by the firm, right? When saving will become equal to investment. The level of income in this figure you can see, this is OY. OY is the level of income where saving is equal to investment, right? जहाँ पे सेविंग किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट के बराबर है. वहाँ उस लेवल ऑफ इनकम को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. It means in this figure OY is the level of income at which saving is equal to investment. यहाँ पे अगर हमें, तो ना तो हमारी इनकम बढ़ेगी और ना ही इनकम कम होगी. Come to this table. This is the 300 level of income, right? ये सेम शेड्यूल है बच्चों. एक ही पैटर्न आपको यूज करना है. इनकम 0 से स्टार्ट करनी है और इंक्रीज करनी है बाय 100. कंजप्शन 40 से स्टार्ट करना है क्योंकि कंजप्शन नेवर बिकम्स 0 and you will start consumption by 80. Saving, you will start at 0 level of income, it is equal to autonomous consumption, this saving, right, and increases by 20 क्योंकि Y increases by 100, C increases by 80, तो obviously the saving will start by 20, right. Investment, we took autonomous, right. Keynes assumed investment here in this theory autonomous to make the concept easy to understand. So here it is 20, 20, 20, 20. This is autonomous, parallel to X, income inelastic, right. Now AD, that is C plus I, AS, this is C plus S, right. So you can see where AD is equal to AS. I किसका कॉम्पोनेंट है बच्चों? AD का, C plus I, और S किसका कॉम्पोनेंट है? AS का, C plus S. तो the level of income which is 300 here, where AD is equal to AS, 300, 300, the saving will be equal to investment at the same level of income. क्योंकि I है AD का कॉम्पोनेंट और
एस है, ए एस का कंपोनेंट, सी दोनों में कॉमन है, तो एट द सेम लेवल ऑफ इनकम वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस, the same level of income as will be equal to I, saving will be equal to investment, and economy will be in the state of equilibrium. Neither the income level will increase nor income level will fall, right? Come to this in figure, that is OY level of income where AD curve saving curve intersect investment curve at point E, S is equal to I, so OY is the equilibrium level of income, E is the equilibrium point, right? अब हमने कहा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे सेविंग किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट के। अब मैंने कह दिया कि ऐसा होगा, तो ऐसा तो नहीं ऐसा होगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों केवल उसी लेवल ऑफ इनकम पर जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पहुँचने के बाद ना तो इनकम बढ़ती है ना इनकम कम होती है, क्यों? इसके लिए हमें एक तो प्रायर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लेना होगा और दूसरा बियॉन्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लेना होगा। टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम वी हैव टू टेक, प्रायर एंड बियॉन्ड। प्रायर हमने लिया ओटी, ठीक है, एट ओटी, पहले इसमें टेबल में देखो प्रायर 300 से पहले 0, 100, 200, ये क्या है प्रायर। जब प्रायर है तो दोनों को इनको कंपेयर करो, एस और आई को, क्या हो रहा है, एस इज -40 और इन्वेस्टमेंट इज 20, तो क्या चाहता है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। द सेम थिंग हियर इट इज हैपनिंग, प्रायर OT, at OT level of income, this is RT is what? R is the point on investment curve. So RT is investment and ST is saving. So RT, which is investment, is more than saving, which is ST. क्लियर है ना? ये तुम्हारा RT है इन्वेस्टमेंट, ST, S is the point on saving curve, ST is saving. प्रायर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है OY और OT क्या है, प्रायर द इक्विलिब्रियम। तो क्या हो रहा है प्रायर द इक्विलिब्रियम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, ठीक है। अब जब सेविंग इज प्रायर द इक्विलिब्रियम एट OT, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, राइट। ST सेविंग इज लेस देन RT, ST क्या है सेविंग और RT क्या है इन्वेस्टमेंट। ST is less than RT in this figure, and here it is, we can take this 100, 200, 0 at any level of income, in saving is less than investment. अब बच्चों अगर ऐसा होगा कि अब देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, राइट, C प्लस I जिसमें I कांस्टेंट है, कंजप्शन पे हम यहाँ फोकस करेंगे। जब S इज लेस देन I होता है, इसका मतलब हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर एंड प्लानिंग टू सेव लेस, ठीक है, कि हम सब हाउस होल्ड सेक्टर, और वैसे भी आपको बताया कि लो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन मोर प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम विल कंज्यूम एंड लेस वी सेव, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो जब प्रायर OT लेवल ऑफ इनकम पे है इकोनॉमी, तो क्या हो रहा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि द कंज्यूमर आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, इसीलिए क्या हुआ, सेविंग फॉल शॉर्ट देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सेविंग व्हेन फॉल विल बी लेस देन इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा, फर्म ने अगर 100 करोड़ का सोचा है, प्लान किया है सप्लाई करेंगे, और हाउस होल्ड ने प्लान किया है खरीदने का, सपोज C एंड I कितना है 40 करोड़ एंड C कितना है सपोज 50 करोड़, तो C प्लस I इज AD, राइट, C 50 एंड I इज 40, तो कितना हुआ 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़। Here that is beyond, right? प्रायर क्या हो रहा है, C प्लस I, C 40 है ये, और C कितना है आपका 120, I am taking 100, right, 120, ये दोनों मिला के कितना हुआ AD हमारा 140, और AS कितना प्लान किया हुआ इस लेवल पे 100, ठीक है,
उन्होंने प्लान किया कि 100 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कंज्यूमर फर्म ने मिलकर कितना प्लान किया, 140। इसका मतलब कि जो हाउस फर्म ने एक्सपेक्ट किया था किनसे, हाउस होल्ड सेक्टर से, उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं और सेव लेस कर रहे हैं। जब कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेव लेस कर रहे हैं, तब ये सिचुएशन होगी कहाँ पे, प्रायर द इक्विलिब्रियम, प्रायर ओटी। हियर इन दिस टेबल 100, 200, 0। ठीक है, और जब ऐसा होगा बच्चों कि हमने हाउस होल्ड ने ज़्यादा खरीदने का प्लान किया कंजप्शन गुड और प्रोड्यूसर ने प्लान किया कम बेचने का, तो फर्म को कहाँ से लाना पड़ेगा ये आउटपुट बच्चों, अपने इन्वेंट्रीज से, टू सेटिस्फाई दिस डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। अब इन्वेंट्री जो प्लान इन्वेंट्री से अगर वो फर्म निकालेंगे तो उनकी प्लान इन्वेंट्रीज क्या होगी, फॉल हो जाएगी। सपोज उन्होंने 100 की प्लान इन्वेंट्रीज सोची है फर्म ने, और हमने 100 में से सपोज यहाँ पे 40 हमने निकाल लिया, 40 करोड़, तो उनकी इन्वेंट्री कितनी बची, इन्वेंट्री बची 60। 100 प्लान किया था, 40 हमने निकाल लिया, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्लान किया ज़्यादा स्पेंड करने का और सेव लेस करने का। अब उनकी प्लान इन्वेंट्रीज विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। 100 प्लान किया था और रह गई कितनी बच्चों उनके पास, 40। ठीक है, रह गई उनके पास 60, क्योंकि 40 उन्होंने विड्रॉ कर ली। 100 प्लान किया था, 40 ज़्यादा हो गया, तो 40 उन्होंने इन्वेंट्री से निकाला, तो कितनी इन्वेंट्री में बची उनकी, केवल 60 करोड़, जबकि प्लान था उनका 100 करोड़। ठीक है, अगर मान ली इन्वेंट्री, प्लान इन्वेंट्रीज विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल ऑफ द फर्म, तो फर्म अब नेक्स्ट साइकिल में क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द आउटपुट टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू द डिजायर्ड लेवल। 60 से 100 में बैक टू द डिजायर्ड लेवल 100 में ले जाने के लिए वो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए प्लान आउट करेंगे। अब जब आउटपुट बढ़ाएंगे तो एज पर केस एन इंक्रीज इन आउटपुट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा कि उनको ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम और सेविंग में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो विद द इंक्रीज इन इनकम द सेविंग विल इंक्रीज। देख रहे हो ना, सेविंग ऊपर जा रहा है, सेविंग विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। और जब तक बढ़ता रहेगा इनकम, जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाएगी। तो जब सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है प्रायर इक्विलिब्रियम, तो saving is ST and investment is RT. ST is more than less than RT. Planning, the consumers are planning to consume more and planning to save less. In this situation, inventory will fall. 3 statement क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और बैक टू इक्विलिब्रियम कैसे आएंगे, 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा हो गया इन्वेंट्री विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल ऑफ द फर्म, तीसरा स्टेटमेंट टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू डिजायर्ड लेवल द फर्म विल इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, व्हेन फर्म विल प्लान टू इंक्रीज द आउटपुट देन एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल आल्सो विल इंक्रीज। व्हेन इनकम विल इंक्रीज सेविंग आल्सो विल इंक्रीज। इफ सेविंग विल इंक्रीज it will continue till saving will become equal to investment. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इनकम बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इज इट इक्विलिब्रियम, इज इट द स्टेट ऑफ रेस्ट, इज इट द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, नो। तो when saving is less than investment it is proved the income will not be in the rest, right? Come to the beyond. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस केवल आपको इंटरेस्ट से उस चीज़ को समझना है। अब आ जाइए बियॉन्ड। बियॉन्ड मैंने लिया है बच्चों ओ क्यू लेवल ऑफ इनकम, राइट।
अब ओ क्यू लेवल ऑफ इनकम आप देख रहे हो, सेविंग कितनी है एम क्यू, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों एन क्यू, ठीक है। सेविंग एन क्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट एन क्यू। जब सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से बियॉन्ड, ठीक है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड इक्विलिब्रियम, एम क्यू इज मोर देन एन क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, फिर तीन स्टेटमेंट। पहले उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर, because as income increases the more people consume less and save more। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ गए ना, इनकम आगे आ गई तो लोग क्या करने लगे, they are planning to spend less and save more at this level of income, right? And once they plan what the firm expected them to, जो फर्म ने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि इतने की ये डिमांड करेंगे, लेकिन इससे कम डिमांड कर रहे हैं और सेव क्या कर रहे हैं, इस ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा अगर करेंगे, सपोज फर्म ने एक्सपेक्ट किया था हाउस होल्ड से कि दे विल डिमांड फॉर 100 करोड़ फाइनल गुड्स कंजप्शन गुड, और लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर ने कितनी डिमांड करी, 60 करोड़ के बराबर। उन्होंने सेव करना ज़्यादा प्लान कर लिया। अब क्या होगा कि उनकी 40 करोड़ के बराबर फर्म का आउटपुट अनसोल्ड रह जाएगा, क्योंकि लोग उसको खरीदने का प्लान ही नहीं कर रहे हैं। दे प्लान टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर, ठीक है, क्योंकि इनकम लेवल इज हायर नाउ। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, कि जो फर्म का आउटपुट था वो अनसोल्ड रह जाएगा इक्वल टू 40 करोड़। अब 40 करोड़ जो आउटपुट अनसोल्ड रह गया बच्चों, अब वो कहाँ जाएगा। अगर हमारे पास मैंने प्लान किया जितना वो बिका नहीं, तो मैं जो बचा हुआ था वो कहाँ रखूँगी, आई विल कीप इन माई स्टॉक, ठीक है। अब मैं जब स्टॉक में फर्म रखेंगे तो द इन्वेंट्रीज विल इंक्रीज विद द फर्म बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल। जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा उनकी इन्वेंट्रीज हो जाएंगी, अनप्लान इन्वेंट्रीज। अब टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू डिजायर्ड लेवल, कम करने के लिए अपनी इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ गई, क्योंकि सामान उनका क्या रह गया बच्चों, आउटपुट अनसोल्ड, जो उन्होंने स्टॉक में रखा और स्टॉक को बढ़ा दिया अनप्लान्ड वे में। अब उसको कम करने के लिए नेक्स्ट साइकिल में फर्म्स क्या करेंगे बताओ बच्चों, फर्म विल रिड्यूस द आउटपुट, क्योंकि ऑलरेडी उनके स्टॉक में अनवांटेड स्टॉक पड़ा है, अनप्लान्ड स्टॉक पड़ा है, अनडिजायर्ड स्टॉक है, तो पहले उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसको क्लियर पहले करने के लिए तो हम नेक्स्ट साइकिल में फर्म आउटपुट को कम करने का प्लान आउट करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री ओवरफ्लो हो रही है, अनप्लान्ड है। अब वो आउटपुट कम करने का प्लान करेंगे, आउटपुट कम करने का प्लान करेंगे तो क्या होगा, उनको बहुत सारे लोग निकालने पड़ेंगे काम से, क्योंकि फालतू में क्यों पैसा देंगे उनको। अब जब काम से निकालेंगे लोगों को तो इनकम लेवल हमारी कंट्री की गिर जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा तो इनकम भी कम होगी। अब इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, क्योंकि इनकम और सेविंग में कैसी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग भी है इस पॉइंट से इधर की साइड चलेगी, ठीक है, टिल सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो बियॉन्ड क्या हो रहा है, इनकम आउटपुट लेवल इज फॉलिंग। यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, फॉल हो रही है, और यहाँ इनकम क्या हो रही है, राइज हो रही है। प्रायर इनकम राइज होगी, बियॉन्ड इनकम फॉल होगी, तो इज इट द स्टेट ऑफ रेस्ट, इज इट द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग? नहीं, इनकम चेंज हो रही है बच्चों। जब चेंज हो रही है यानी कि स्टेट रेस्ट में नहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि प्रूव करो एक तो, ठीक है, कि इसी लेवल पे होता है, इससे पहले और बाद में नहीं होता है, डिफेंड और रिफ्यूट, राइट। और या फिर कि what changes will take place in the economy if saving is more, planned saving is more than planned investment? What changes will take place in the economy when planned investment is more than planned investment is more than saving and planned saving is more than investment? और MCQ भी बहुत आते हैं बच्चों,
तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि वेदर इनकम इज राइजिंग, कहाँ राइज हो रही है, प्रायर, और फॉलिंग कहाँ हो रही है, बियॉन्ड, और इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल टू ASOY। यहाँ पे राइज होगी, यहाँ होगी तो, यहाँ पे होगी तो फॉल होगी, और OY पे तो होगी तो क्या होगी, रेस्ट में होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी और कल आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। फेस्टिवल का समय चल रहा है, टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है हम लोगों को, और वैसे भी स्कूल में जाके हम लोग बहुत थक जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मेरा भी मन में ये इच्छा है हमेशा कि जो मेरे पास है मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊँ, सारे बच्चों को, क्योंकि इस एज में आके ऐसा लगता है जो है सबको बांटो, जो अपने पास अच्छी चीज़ें हैं समाज को दो। ठीक है, तो वो पॉसिबल मैं तो दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग लेने वाले कितने सिंसियरली ले रहे हो। अब अगर मान लो मैंने ये मोबाइल है मेरे हाथ में, मैं आपको देना चाह रही हूँ, लेकिन आपका हाथ आगे नहीं होगा, ठीक है, तो ये मोबाइल यहाँ नहीं आएगा, ये नीचे गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो जो नॉलेज मैं देने की मन है मेरा, कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप आके पूरा वीडियो ध्यान से देखो, बुक रख के देखो, नोटबुक रख के देखो, लेकिन उसको 100% समझो, तभी मेरा देना आपके पास जाएगा, तभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो मैं क्योंकि सारे बच्चों में अपने बच्चे ही देखती हूँ और मुझे लगता है सारे बच्चों को खूब नॉलेज हो, खूब सक्सेसफुल हो। ठीक है, और ये सब मैं तभी कर पाऊँगी जब आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे, बाय सब्सक्राइबिंग मी, by watching the video full, by liking and by giving comments, right? तो God bless you and be गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान बनो। भगवान बनने की हमें ज़रूरत नहीं है बच्चों, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम क्या बन जाए, इंसान बन जाए। तो मेरी आपसे सिर्फ यही आशीर्वाद है कि आप खूब अच्छे इंसान बनो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड। God bless you.